triangles. So दोस्तों, what do you know about triangles? Let's first revise whatever you know. अब तक जो स्टैंडर्ड 9th या स्टैंडर्ड 8th में आप लोगों ने ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा, let's start that revision first. So you know guys, triangle looks like this. This is the, I can say, shape of a triangle, right? This is how a triangle looks like. If I talk about a triangle, then a triangle, you know, it's a three-sided figure. The first thing I can write is it is a three-sided figure. That's the definition of a triangle. For example, ये एक side और ये एक side, right? This is the type, I can say it's a three-sided figure. Fine. Similarly, guys, it has three vertices, या three points. For example, points A, point B, and point C. So they are called the three vertices. If I want to name the sides, then what are the three side? It's a three-sided figure, right? So let me name the sides first. So what is the side? So side, I may say AB, right? This is side AB, you know that. फिर ये नीचे वाला होगा side BC, and the third side will be side AC, right? ये वाला. So I can just say side AB, side BC, and lastly will be side AC. So these are the three sides of my triangle. Okay, fine. So let me just do this. Three sides of it. It's a three-sided figure. सबको पता है. Similarly, guys, it has three vertices, right? Out here, the three vertices will be point A, point B, and point C. So मैं कहूँगा points, point A, point B, and point C. They are the three vertices of my, I may say, triangle. Okay. Similarly, दोस्तों, one more property about the triangle is three-sided figure लिख दिया, three vertices लिख दिया. The third important property is it has three angles. This will be, let's say, your first angle. Let's say this is your second angle, and let's say this is your third angle, right? So there are three angles: angle A, angle B, angle C, right? So I can say it has three angles. What are those three angles? Angle A, angle B, angle C, right? So these are some basic things you know about a triangle. Three-sided figure, three vertices, three angles. Now guys, to revise a little bit more, एक दो मिनट और revise कर लेते हैं. Something related to, I may say, types of triangles. ये भी आप लोगों ने maybe 5th, 6th में पढ़ा होगा, right? So there are three types of triangles. Types of triangles. So the first type of triangle you know is something called as an equilateral triangle. Equilateral triangle. क्योंकि important concepts है triangle के respect से, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? What do you mean by equilateral triangle? Equilateral triangle में दोस्तों, all sides of the triangle will be equal and all angles will be also equal. So all side, मैं equilateral triangle पहले बनाता हूँ. So if let's say this is your equilateral triangle, right? So let's say this is an equilateral triangle. I'll name this as A, B, and C. So equilateral triangle के बारे में remember one thing, that all sides equal. उसी के साथ साथ all angles equal. So इसका क्या मतलब है? इसके तीन साइड हो गए ना दोस्तों. All sides equal मतलब AB will be equal to BC will be equal to AC. Right? All sides equal and all angles equal matlab, I may just write down angle A will be equal to angle B will be equal to angle C. Right? So this is basically an equilateral triangle. You should know about this. Basic पता है आपको, all sides equal. दूसरे टाइप का ट्रायंगल होता है जिसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल. गाइस, दिस रिवीजन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट. अगर आप लोग में से किसी को पता है तो आप ये स्किप कर सकते हो, पर मेरा काम है रिवाइज करना. अगर ये सब नहीं पता है ना तो काम बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. ओके, सो लेट मी टीच यू व्हाट डू यू मीन बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल. सो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोस्तों रिमेंबर दैट लेट्स से दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल A, B and C. Okay, so isosceles triangle में guys two sides will be equal और उन two sides के opposite वाले two angles will be equal. Remember, so मैं कहूँगा two sides equal
okay, and angles opposite to two sides are equal. ओके, सो इसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल. फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप कहोगे ए बी विल बी इक्वल टू ए सी, ये दो साइड्स विल बी इक्वल, ये वाला एक साइड, ये वाला एक साइड, दीज टू साइड्स विल बी इक्वल. ओके, सो मैं लिखूंगा टू साइड्स इक्वल, मतलब ए बी विल बी इक्वल टू ए सी, और इनके ऑपोजिट वाले एंगल, मतलब इसके सामने देखो ये एंगल पड़ता है बराबर, इसके सामने ये वाला एंगल पड़ता है, तो बेसिकली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वो इक्वल साइड के सामने वाले एंगल है, राइट, बराबर. तो देयरफॉर एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी. ओके, कोई दो एंगल इक्वल, दो साइड इक्वल, उनके सामने वाले साइड, दो सामने वाले एंगल इक्वल. ओके, सो इससे हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल. एंड गाइस द थर्ड टाइप ऑफ ट्रायंगल इज समथिंग कॉल्ड एज स्केलीन ट्रायंगल. स्केलीन ट्रायंगल, व्हाट डू यू मीन बाय स्केलीन ट्रायंगल? इस ये ऐसा ट्रायंगल होगा जिसमें नो साइड्स विल बी इक्वल, नो एंगल्स विल बी इक्वल. ओके, सो मैं कहता हूं नो साइड्स इक्वल. ओके, नो साइड्स इक्वल, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट विल बी नो एंगल्स इक्वल. मतलब क्या? आई ड्रॉ सिंपल वन. लेट्स से एग्जाम्पल के तौर पे एक ऐसा और लेट्स से एक ऐसा. ओके, फाइन. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन स्केलीन ट्रायंगल. कोई भी साइड इक्वल नहीं है यहां पर और कोई भी एंगल इक्वल नहीं है. ओके, सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. देयर इज नो साइड इक्वल और नो एंगल इक्वल आउट हियर इन दिस पर्टिकुलर केस. ओके, फाइन. सो देयरफॉर गाइस ये हो गए तीन टाइप ऑफ ट्रायंगल. बेसिक रिवीजन किए हमने टाइप ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में, पर इस चैप्टर में हमें टाइप्स ऑफ ट्रायंगल नहीं पढ़ना था, ये तो मैंने आपको रिवीजन करवाया. एक्चुअल में इसमें जो कंसेप्ट हमें स्टार्ट करना है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल. फिर से रिपीट करता हूं, लिसन अगेन. द कंसेप्ट वी नीड टू स्टडी इन दिस चैप्टर इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स. लेट्स मेक अ स्टार्ट and let us try and understand congruence of triangles, or let us first try and understand the word congruence. Congruence. Okay, congruence. Congruence का मतलब identical. What do you mean by that? Congruence का मतलब it means identical. Identical का मतलब same to same, exact ditto same. What do I mean by that? Let me give you an example. So guys, for that I have an example for you. Guys, मेरे हाथ में दो bottles है, आप देख सकते हो. ये बिस्लरी की bottles है, पानी की जो bottles आती है. Both of them are 1 liter bottle, and you can say that these two bottles are exactly identical. Exactly identical मतलब एकदम same. इसका भी size same, इसका भी size same. इसका जो डायमीटर है वो भी सेम, इसका भी डायमीटर यहां पर भी सेम, राइट. ये ऊपर से छोटा है, ये भी ऊपर से छोटा है, ये नीचे से बड़ा है, ये भी नीचे से बड़ा है, राइट. सो दे कैन बी टर्म्ड एज एग्जैक्ट आइडेंटिकल थिंग्स, राइट. एकदम सेम, कुछ डिफरेंस है ही नहीं, एग्जैक्ट आइडेंटिकल है, राइट. सो देयरफॉर एग्जांपल ऑफ दैट वुड बी, as I started, 2 water bottles of, let's say, 2 1 liter Bisleri bottles. Let's start with that. So 2 1 liter Bisleri bottles. Okay, so they can be termed as exactly identical. Can I say these two, there is a congruence between them. Congruence एक property है, and if they are congruence, if the congruence property is there, then they are called congruent. Okay, then this will be called as congruent bottles. ठीक है, एक rough example मैंने आपको दिया. Let's make a start from there. So therefore 1 liter Bisleri bottles are, I may say, are exactly identical. Therefore I can say, what can I say? That the 2 bottles are congruent. Okay, congruent. So समझने के लिए rough example मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है. Fine. Let's take one more example. Let's say guys, you have a square. Okay, यहां पर टेक्स्ट बुक का एग्जांपल दे रहा हूं. There is a figure given to you. These are 2 squares
these are two squares of same size. Same size. What do you mean by that? Guys, if this is a square, let's say this is 4 centimeter. So all sides of a square are equal, right? 4 centimeter, 4 centimeter, 4 centimeter. This will be also 4 centimeter. सब 4 centimeter के sides है. So let's say you look at both of them. Let's say this is square A and square B. Okay? Yeah. Let me not write this down. Let's write this as A, B, C, D. And this, let's say, is square P, Q, R, S. So guys, can I say they are of the same size? They are ditto, exactly identical, right? So I may say identical. So from there, I can say identical. Therefore, I can say square ABCD is congruent to square which square? To square which square? My second square PQRS, right? बराबर, क्योंकि एग्जैक्ट आइडेंटिकल है, सेम साइज है, तो दोनों एकदम जुड़वा है. जुड़वा जिसको बोलते हैं ना, डुप्लीकेट है. इजिएस्ट वर्ड टू रिमेंबर आउट हियर इज डुप्लीकेट. अगर कोई चीज एक दूसरे का एकदम रेप्लिका है, डुप्लीकेट है. Duplicate. So they can be termed as what? They can be termed as congruent or congruence. Okay, fine, things like that. Now dosto, let's say I can give you more examples. Let's say I have two ATM cards. Okay, let me give you an example of two ATM cards. So dosto, if you look at, I have दो banks के मेरे पास ATM cards है. Okay, so these are two ATM cards in front of me. Can I say they are of the same size, right? एक के ऊपर एक को रखता हूं, देखो एकदम same size के, size में difference जरा भी नहीं है, same size, right? So they are, I can say ATM cards of the same size. Hence, can I say both of them will be congruent, right? बराबर, उनका outer size तो same है, कलर अलग अलग है वो बात अलग है, पर size तो same है ना. So I can just write that down. One more example. Two ATM cards of same size. So therefore I may write down, therefore they are what? Identical, बराबर, same side, same size. Therefore both ATM cards are congruent. Cards are congruent. पहले मैं लिखूंगा they are identical और they are congruent, right? Simple. So दोस्तों, अगर डुप्लीकेट हो, आइडेंटिकल हो, साइड सेम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट कहते हैं. नाउ लेट अस टेक दिस टू ट्रायंगल्स. ट्रायंगल्स में कैसा कहा जाएगा? देखो हमारा मकसद क्या है? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ना, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रायंगल्स. सो लेट्स राइट कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? दो ट्रायंगल बनाता हूं and I'll show you when they will be congruent. So let's say this is your first triangle, this is your triangle ABC. Okay, this is your first triangle ABC. इसका side है, let's say this is 4 centimeter, this is 5 centimeter, समझने के लिए, and this is 6 centimeter. Okay, fine. Similarly, you have second triangle, let's say like this, and like this. Okay, fine. Okay, let me just do it again. Okay, so दूसरा एक ट्रायंगल है, अप्रोक्सीमेटली मैंने बनाया है. लेट्स से दिस ट्रायंगल इज PQR, where PQ is 4 centimeter, this is 5 centimeter, and this is 6 centimeter. तो आप देख सकते हो guys, can I say both of them are identical? एक जैसे ही है. क्यों? क्योंकि देखो ये 4 तो ये 4, ये 5 तो ये 5, ये 6 तो ये 6, राइट? जो यहां पर वो यहां पर, बराबर, जो यहां पर वो यहां पर, जो यहां पर वो यहां पर, जो यहां पर वो यहां पर, राइट? तो दोस्तों, since both of them are identical, I may say both triangles are identical
अगर आइडेंटिकल है, सो देयरफॉर आई कैन से देयरफॉर बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बराबर, सेम साइज या कॉन्ग्रुएंट मैं कहूंगा, बराबर, आइडेंटिकल, डुप्लीकेट, जो वर्ड यूज करना है एकदम सेम है, ये 4 तो ये 4, ये 5 तो ये 5, ये 6 तो ये 6, राइट, बराबर, तो इन्हें कॉन्ग्रुएंट कहा जाएगा। नाउ कॉन्ग्रुएंट का गाइस एक सिंबल होता है। सिंबल, व्हाट इज अ सिंबल? रिमेंबर द सिंबल। सो सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, इसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंट का सिंबल। क्या कहते हैं? दो इक्वल टू लिखने का, फिर उसके ऊपर ऐसा कुछ साइन बनाने का, ठीक है, ऐसा वेव जैसा। सो दिस विल इज कॉल्ड द कॉन्ग्रुएंट साइन। सो हाउ विल आई रिप्रेजेंट दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? तो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ट्रायंगल ABC इज, और ट्रायंगल PQR यहां पर है, राइट, तो उसको कॉन्ग्रुएंट लिखने के लिए हम इस तरह से साइन लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट साइन, ओके। इसका मतलब होता है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, राइट, इसको कहा जाता है कॉन्ग्रुएंट। तो ABC ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR ट्रायंगल। इज दिस क्लियर? आइडेंटिकल, राइट, फाइन। दोस्तों आपने देखा कि अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है ना, तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अब यहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इसके आमने सामने वाले साइड्स इक्वल है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आमने सामने को इंग्लिश में इट इज कॉल्ड इन इंग्लिश corresponding sides, okay? So remember a property, very important property, that if triangles are congruent, then I can say, number one, the first property is corresponding sides are equal. What do you mean by that? Corresponding sides, आमने सामने वाले sides equal. What do you mean by that? It means यहां से AB will be equal to यहां से PQ, right? बराबर, AB will be equal to PQ. Similarly, अब यहां से बोलो तो आप बोलोगे सर यहां से AC will be equal to यहां से PR, AC will be equal to PR, right? And यहां नीचे वाले की बात करो तो BC will be equal to QR, right? So BC will be equal to QR, बराबर। I hope this is clear enough. यहां वाला यहां वाला यहां वाला यहां, right? तीन sides are equal. Fine. First property is clear that if triangles are congruent, corresponding sides will be equal, right? Clear. Now to understand further, एक तो चीज तो हमें समझ में आ गई, corresponding sides equal। दूसरी चीज क्या है पता है दोस्तों? उनके corresponding जो angles हो गए, आमने सामने वाले angles हो गए, वो भी equal हो गए। What do you mean by that? So just to pull this page a little bit down, let's move this. तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी तो देख ली कि क्या इक्वल है, साइड्स इक्वल है। अब दूसरी प्रॉपर्टी समझते हैं, दैट इज सेकेंड प्रॉपर्टी for triangles congruent, corresponding angles equal, corresponding angles equal, मतलब यहां से एंगल A will be equal to यहां का एंगल A, राइट, सॉरी यहां का एंगल P, यहां से एंगल B will be equal to यहां से एंगल Q, and similarly यहां से C will be equal to यहां से R, राइट। सो एंगल A इक्वल टू एंगल P, दूसरा एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंड एंगल C will be equal to एंगल R, राइट। सो प्रॉपर्टी हमें समझ में आ गई, साइड्स तो इक्वल है, एंगल्स भी इक्वल है, राइट। इज दैट क्लियर इनफ? नाउ वन मोर थिंग गाइस, अब मैं एक रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहा हूं। देखो जो सिंगल वाला इक्वल है ना, जिससे तो मैं उसको सिंगल दिखा रहा हूं, ये डबल वाला डबल वाले से इक्वल दिखा रहा हूं, ये ट्रिपल वाला ट्रिपल वाले से, इसको देख के आपको समझ में आना चाहिए दैट C इज इक्वल टू R। गलती से भी ये मत लिखना कि P इक्वल टू C। क्यों P इक्वल टू C नहीं? क्योंकि मैंने दिखाने के लिए वहां एक बना है, यहां तीन बना है, राइट, जस्ट टू अंडरस्टैंड। सो तीन वाला ये तीन वाले से इक्वल है। सिमिलरली दोस्तों ये 4 सेंटीमीटर है, तो मैं यहां पर एक डैश डालता हूं, ये डैश डालता हूं, मतलब ये दोनों इक्वल है। यहां पर डबल डैश डालता हूं, यहां डबल डैश डालता हूं, मतलब आई मे जस्ट से दैट व्हाट BC विल बी इक्वल टू QR, डबल डैश डाल रहा हूं, और समझाने के लिए यहां ट्रिपल डैश डाल रहा हूं, यहां ट्रिपल डैश डाल रहा हूं, मतलब AC विल बी इक्वल टू PR। फ्रॉम दिस कैन आई से आउट हियर A करेस्पॉन्ड्स टू P, जो यहां पर A है वो यहां पर P बन जाता है, क्योंकि आइडेंटिकल एकदम सेम है। यहां का जो B है
वो यहां जाकर के बन जाता है Q, राइट? सो B becomes Q and lastly C becomes R, right? So all these points are identical. यहां से यहां जाने में ये points identical. So therefore दोस्तों what did we understand? We understand that if the two triangles are congruent, then number one, corresponding sides equal. सबसे पहले इसे कहा जाता है corresponding sides equal. Second property is corresponding angles equal. Okay, very important thing, you have to keep this in mind. पर ये कब होगा? जब congruent हो तो ये application होगा, ठीक है? Let me take you through one more quick example. चलो अब एक जल्दी से एक example लेते हैं. Let's take two triangles and let's write down what is equal, what is not equal. Okay, come on, let's do that. And उसके साथ में एक property भी लिखते हैं. Let's take this one. Let's try to keep them identical. Okay, fine. So let's say these are two triangles LMN, LMN, and this is let's say XYZ. Okay, वो एक्सरसाइज जो पहले वहां की थी वो यहां पर भी वापस रिपीट करना है. एंड गाइज मुझे कहा गया है दैट ट्रायंगल LMN is congruent to triangle XYZ. From this one clear cut understanding is जो यहां पर L है that becomes यहां का X, the M out here becomes यहां का Y and the N out here becomes यहां का Z. So first property is I can say guys all sides, the corresponding sides are equal. So first property is I can write down corresponding sides, मतलब यहाँ का LM will be equal to यहाँ का XY. Is that clear? देखो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, फर्स्ट टू यहाँ के विल बी इक्वल टू यहाँ के फर्स्ट टू, राइट? LM will be equal to XY. Remember the order is important. Okay, fine. Next LM will be equal to XY. Next MN will be equal to YZ. I hope this is clear enough, right? YZ, right? So हमने next case में क्या किया, MN को लिखा equal to YZ and last first टू लिखा, मतलब first टू मतलब पहले LM लिया फिर MN लिया, अब first and last ले लो. So just to show first and last, यहाँ से भी first and last, so मतलब LN will be equal to XY. LN will be equal to XY. चाहे इसे इक्वल लिखो या कॉन्ग्रुएंट लिखो, बात तो एक ही है. इनको भी कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं बट बेटर है हम इक्वल लिखते हैं, ठीक है? सो इट्स बेटर टू राइट देम इक्वल रादर देन कॉन्ग्रुएंट. आई जनरली प्रेफर writing these two equal. Okay, fine. So what is the reason? You know, the reason would be corresponding sides of congruent triangles. What will be these called? These will be called corresponding sides of congruent triangles. ये होने की वजह से, the reason is, इसी की वजह एंगल्स साइड्स इक्वल क्यों है? बिकॉज दे आर द कॉल्ड करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके साइड्स इक्वल है. ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, राइट? इसको ऐसा लिखा जाता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. शॉर्ट फॉर्म है CSCT. CSCT, ठीक है? तो शॉर्ट फॉर्म में आगे से मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, ठीक है? CSCT. सिमिलरली दोस्तों साइड्स इक्वल है, हमें एक और चीज पता है, एंगल्स भी इक्वल है. तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, बराबर? This angle will be equal to this angle and this angle will be equal to this angle, right? So आप लिख सकते हो angle L will be equal to angle X, angle M will be equal to angle Y, angle N will be equal to angle Z. अब यहाँ reason आएगा corresponding angles of congruent triangles. So the reason will be corresponding angles of congruent triangles. Okay, इसका शॉर्ट फॉर्म होगा CACT. Okay, so therefore guys हमने क्या क्या किया, अब एक क्विक रिवीजन में समझ लेते हैं. हमने क्या किया, दैट अगर साइड्स इक्वल, सॉरी ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है ना तो दो चीज बनती है. द समरी इज, आई राइट डाउन द समरी, कम ऑन. अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, if triangles congruent, then remember corresponding sides equal. I can say short form में लिख रहा हूं, corresponding sides equal हो जाते हैं. और दूसरी चीज क्या होती है, corresponding
एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, सिंपल एज दैट। दो चीज हमने समझी, ओके। एंगल्स ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो दो चीज, साइड्स इक्वल, एंगल इक्वल, बस खलास, सिंपल। नाउ लेट्स डू एन एक्सरसाइज, कम ऑन। टेक्स्ट बुक में हमें एग्जांपल दिया गया है, क्या ये चारों स्क्वायर्स जो आप देख सकते हो आर दे कॉन्ग्रुएंट? द आंसर विल बी नो, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, नॉट कॉन्ग्रुएंट। देख के बताओगे क्यों भाई? बिकॉज दे आर नॉट आइडेंटिकल, बराबर, नॉट आइडेंटिकल, देयरफॉर दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, राइट? सिंपल। एक और एक्सरसाइज दी गई टेक्स्ट बुक में, देखो कुछ ट्रायंगल्स हमें दिए, ध्यान से देखो, हमें बताना है कौन सा वाला किससे कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है? तो आप ये वाला ध्यान से देखो, फर्स्ट वाला, तो इट इज 4.5 4 5, ओके। और आप ये भी देखो, दिस इज 4.5 4 and 5। सो गाइस, भले से टेढ़ा मेढ़ा है पर कहना इससे साइज सेम है। 4.5 देखो, 4 का यहां 4 मिल रहा है, 5 का यहां 5 मिल रहा है, और 4.5 का यहां 4.5 मिल रहा है, राइट? So therefore both these triangles, that is I can write down triangle ABC is congruent to triangle, ये कौन सा है? इसका नाम मैं दे सकता हूं PQR, बराबर, PQR दे सकता हूं, definitely I can give that as PQR, okay fine। so यहां पर AB, यहां पर PQ, यहां पर QR, यहां पर BC, right? so PQR। द रीजन इज, देखो यहां पर मैंने देखा 4.5, यहां 4.5, यहां 4, यहां 4, यहां 5, यहां 5, टेढ़ा मेढ़ा जरूर है पर कॉन्ग्रुएंट है, आइडेंटिकल है, ओके फाइन। इफ यू कंपेयर, लेट्स से दिस वन विद दिस वन, इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं, तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4.5, ये भी 4.5, ये भी 5, ये भी 5, मतलब ये भी सेम ही है ना, बराबर ना, 4 4.5 5 कॉम्बिनेशन सेम है, ओके। तो देयरफॉर आई कैन इवन से कंपेयर दिस, कम ऑन। सो ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा, इट इज ऑल्सो सिमिलर टू MNR लिख सकते, ओके। बट ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, हमें सबसे पहले जाना है 4 सेंटीमीटर का साइड, अगर देखो हम 4 to 5 to 4.5 ऐसा जा रहे हैं, या उल्टा ABC जा रहे हैं ना, मतलब 4.5 5 और 4.5 सेंटीमीटर से जा रहे हैं हम 5 सेंटीमीटर, से जा रहे हैं हम 4 सेंटीमीटर। देखो ऑर्डर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ओके, क्योंकि मैंने ABC लिखा है ना, ABC का ऑर्डर देखो ना, 4.5 5 और 4, राइट? सो यहां पर लिखूंगा, देखो यहां पर भी देखो 4.5 5 और 4 मतलब PQR। अब यहां लिखना है तो 4.5 5 और 4 मतलब MRN हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर इनफ, दिस विल बी इक्वल टू MRN, बराबर, क्योंकि हमें ऑर्डर में जाना है, पहले हमें 4.5 लेना है, फिर 5 लेना है, फिर 4 लेना है, राइट? ओके, नेक्स्ट वाला ये भी देखो 4.5 5 और 4, राइट? सो FDE, राइट? FDE 4.5 5 और 4, राइट? लाइक दिस। सो दिस विल बी ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू FDE। नाउ कंपेयर विद दिस वन, दिस गाय, इससे कंपेयर करो। तो दोस्तों लेट्स टेक, अभी हमें समझ में आ गया ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम, ऑल ऑफ देम आर सेम सेम, तो मैं लिखूंगा सेम सेम सेम, सब जुड़वा भाई है, ये भी सेम, तीनों से, ओके। नाउ अब इसको देखो तो आप देख सकते हो गाइस, दिस इज नॉट 4 4.4 एंड 5, ये 5 5 5 है, तो मतलब दिस इज ऑड मैन आउट, दिस इज नॉट सेम, ऑड, आई मे से दिस इज ऑड गाय। सो अगर आपको कोई पूछे कि ABC और STU के बारे में बताओ, तो आई विल डेफिनेटली से दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। So I can say triangle ABC and triangle STU are not congruent. Are not congruent. Okay, fine. So this is what I'll say, because they are not identical, therefore they are not congruent, right? As simple as that. बहुत आसान सा चीज है। ये चारों आइडेंटिकल, एकदम जुड़वा जुड़वा है, ये। So therefore मैंने लिख दिया ये चारों congruent है, पर ये ऑड मैन आउट है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ओके। सो दिस इज वन सिंपल एक्सरसाइज टू गो फॉरवर्ड विद, ओके। सो मेक अ नोट अप टिल हियर, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। सो दोस्तों हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, जरा स्टेटमेंट को पहले अच्छे से पढ़ते हैं। दो ट्रायंगल्स तो हमने देखे, लेट्स रीड द स्टेटमेंट्स। तो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल